So hello everyone. So I am Akhilesh Tripathi, and here I am back with another video. And in today's video, we'll start with our new topic, that is the Unit 2 of Criminology, Penology, and Victimology, Part 2. Okay. So in our earlier videos, we have discussed about we have discussed and completed our Unit 1, and we have discussed about the theories of punishment. Okay, what were the different theories of punishment, and then efficacy of punishment. Okay, adult penal policies. So if you are having any kind of doubt or anything, you can ask me in the comment section of all those videos, or in any videos. Okay, and I will try to solve it, okay, as soon as possible. So now let's have a quick revision, and let's have a quick view of the syllabus of the Unit 2. Okay, so what are the topics that we are going to study in the Unit 2? Okay, are the first, the punishment of offenders. Okay, we'll study about the punishment of offenders. So what are the headings, subheadings? Some discarded modes of punishment. Okay, it consists of corporal punishment. Okay, we'll study about the corporal punishment. So it's like physical torture, hai na? So these are now currently discarded, okay, from the former law IPCA. Okay, so what are the different types of punishment? Okay, under corporal punishment, that is whipping, mutilating, branding, stocks, pillory, sucking stool. Okay, see the punishment that I have marked. Okay, so these are like whipping, flogging, and mutilation. These are in your course. Okay, then transportation and public execution. Okay, so under public execution, we'll also study about the branding, stocks, and pillory. Okay, now punishment under the criminal law is the second heading of your syllabus. Then it consists of the capital punishment, that is death punishment, you already know it. Then imprisonment, simple, regular, solitary confinement was also there, but currently now it is discarded. Okay, but we'll only study what are the punishment that are still going on. Okay, now the another are monetary punishment. Okay, the punishment which are related to the in monetary terms. Okay, like fines, forfeiture of property, fines, compensation, that you know. Okay, then we'll study about the prison system. Okay, so what is the prison system? Okay, then what are the administrative organizations of prison, jail manual, then power of prison officials, what are their powers, and what are the open prisons. Okay, now there is a new concept of open prisons also, so that will be studied. Okay, we'll do it in our upcoming videos also. Then prisoners classification. Okay, so what are the classification of prisoners, है ना, like male, female, juvenile, adult. See, juvenile, we have talked about juvenile. So the persons, okay, who are the offenders under the age of 16 or below 16 are called juveniles. Earlier the age bar was set at 18, but after the Criminal Amendment Act, so it was reduced to 16. Okay, now people of age of 17 or 18 are also treated as the adults in giving them punishments. After that, under trial and convicted prisoners, then constitutional imperatives and prison reforms, then prison management, prisoner size. So all these are the topics that we are going to study in our Unit 2. Okay, so now let's start with our today's topic. So today's topic is corporal punishment. Okay, physical torture. Sorry. Okay, so we'll study about the corporal punishment. Okay, now corporal punishment, let me zoom it so that it will be easy for you to understand. Okay, and please comment down, and please inform me if you are having any type of problem in reading this due to font size or anything. Okay, so I will increasing accordingly, and I will also provide this notes if you want. Okay, so now let's start with our today's topic, that is corporal punishment, physical torture. Then corporal punishment, the infliction of physical pain upon a person's body as punishment for a crime or infraction. अब देखिए corporal punishment क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का फिजिकल पेन होता है, ठीक है, अगर हम किसी पर्सन की बॉडी पे देते हैं एज अ पनिशमेंट ऑफ क्राइम, किसी आदमी ने किसी भी तरीके का क्राइम किया है तो उसको जो हम पनिश करते हैं तो उसको किसी भी तरीके का फिजिकल पेन जो देते हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, उसको टॉर्चर करना. So corporal punishment includes flogging, beating, branding, mutilation, blinding and the use of stock and pillory. Okay, so इन सब तरीके की पनिशमेंट्स को कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर देखा जाता है. सो इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है.
और अगर कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हो जो शायद आपके सिलेबस में ना हो, बट फॉर योर क्वेरी एंड फॉर योर जनरल नॉलेज, सो वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन. ओके. Then advocates of corporal punishment argue that it is more likely than any alternative to prevent offenders from committing further criminal acts. Okay. And it is also an exceptionally strong deterrence to potential offenders. So advocates at that time, जो पुराने ज़माने के advocates थे, उनका ये कहना था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो जो है मतलब जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कि ऑफेंडर्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कि वो आगे कोई भी तरीके का जो है क्राइम ना करे, ठीक है. और उन्होंने बोला कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंस भी है ना, बहुत डिटरेंट है, बहुत डिटरेंस इफेक्ट रहता है इसका. मतलब आम जनता जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा फिर उनके अंदर भी एक फियर आ जाता है, एक लेसन उनको भी मिल जाता है, वो सीख जाते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी क्राइम अगर किया जाएगा तो इस तरीके की उनको फिजिकल टॉर्चर और इन सब चीज़ों से उनको झेलना पड़ेगा, ठीक है. सुनाओ, फिजिकल टॉर्चर इन स्कूल्स. अब जैसे कि देखिए मॉडर्न टाइम में हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने स्कूल में भी, आपके तो बच्चों का ऐसे साथ नहीं हो रहा, बट आई थिंक हमारे और आपकी जो एज के स्टूडेंट्स थे, है ना, 80s 90s 70s के जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ भी ये होता है कि बचपन में बहुत मार पड़ती थी, है ना, स्कूल में टीचर्स से, और जो बहुत तरीके की पिटाई होती थी. कभी कोई डस्टर से मारता था, कोई स्केल से मारता था, ठीक है, आप जानते होंगे सबके सब. सो ये क्या था कि ये भी एक तरीके का फिजिकल टॉर्चर है, ठीक है, जो एक स्टूडेंट को दिया था, जो बच्चों को दिया जा रहा था. सो आपको पता चला होगा कि अब कानून आ गया है कि अब बच्चों को स्कूल में नहीं मारा जाएगा. तो वो क्या था, RTE एक्ट था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया गया. इसके सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि दैट द सेक्शन 17 ऑफ द RTE एक्ट 2009 इम्पोजेज एन एब्सोल्यूट बार ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट. सो मतलब ये तो हम आपके लिए उसके लिए पढ़ा रहे हैं कि आप जानो मतलब ये क्या है, करंटली इसका कैसा सिग्निफिकेंस है, ठीक है. It prohibits physical punishment and mental harassment to child and prescribed disciplinary action to be taken against the guilty person in accordance with the service rules applicable to such person. ठीक है, आप समझ गए कि फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट जो बच्चों के लिए है ना, वो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है. उसकी सर्विस को भी मतलब बार कर दिया जा सकता है, उसकी सर्विस रोक दी जा सकती है ना, उसको जो है जो भी इसका स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है वो लिया जा सकता है. चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट उस हेडिंग पे. नाउ कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर जो आता है विपिंग, जो आपके सिलेबस में है. सो विपिंग को हम लोग फ्लॉगिंग भी बोलते हैं. ओके. सो देखिए मैंने इसकी फ़ोटो एक शेयर करी है, इससे कहते हैं विपिंग. और देखिए अब तो मैं जितनी भी पनिशमेंट्स के बारे में बात करूँगा, लगभग वो सारी पनिशमेंट ऐसी होंगी जो आपने फिल्म्स में या कहीं ना कहीं देखा होगा. तो ये सीन भी आपने फिल्मों में देखा होगा. आई थिंक बागी 2 आई थी टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी वो जब वो डायलॉग मारता है कि जो तेरा टॉर्चर है वो हमारा जो भी उनका एक्सरसाइज है क्या है. सो उसमें भी देखिए ये चीज़ था कि उसमें भी टाइगर श्रॉफ को ऐसे बांध करके मारा जा रहा था, जो तेरा टॉर्चर है वो हमारा वार्म अप है. ओके, अब याद आ गया. सो उसमें भी देखिए तो विपिंग को ऐसे दिखाई, तो फिल्म्स में ये सब पनिशमेंट्स आज भी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, चूँकि अब ऐसा जल्दी नहीं होता है. सो नाउ विपिंग पढ़ते हैं. विपिंग ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉगिंग और कैनिंग. ओके. अब बीटिंग एडमिनिस्ट्रेड विद एन विप और रॉड. विप माने होता है कोड़ा, जिसे कहते हैं कि कोड़े से मारा जाना, ठीक है. देखिए जो पर्सन है मिस्टर, ये पुलिस वाले हैं जो पहले मारे जाते हैं टाइगर श्रॉफ से, तो इन्होंने कोड़ा लिया हुआ है, ठीक है, और टाइगर श्रॉफ बंधे हुए हैं, ठीक है, और पुलिस वाले भी बगल में खड़े हुए हैं. सो टाइगर श्रॉफ मूवी में ऐसा नहीं बने थे, बट समझने के लिए आपको बता रहा हूँ. सो इसे कहते हैं विपिंग. ओके. सो किसी को कोड़े से मारना या किसी रॉड से या किसी मारना, उसको बोलते हैं विपिंग. ओके. नाउ we'll study more about whipping. Okay. Of all the corporal punishment, whipping was one of the most common methods of punishing criminals. Okay. In India, this mode of punishment was recognized under the Whipping Act 1864, which was repealed and replaced by similar act in 1909 and finally abolished in 1955. देखिए जो हम लोग ये सब पनिशमेंट पढ़ रहे हैं, ये सब डिस्कार्डेड पनिशमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया है. सो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये थी कब और कब ये डिस्कार्डेड कर दी गई, ठीक है. सो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट में जो विपिंग थी, सबसे बहुत ज़्यादा ही कॉमन मेथड था क्रिमिनल्स को पनिश करने का, और इसको जो है विपिंग एक्ट 1864 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, ठीक है, जो लेटर ऑन जो है इसको रिपील किया गया 1990 में, ठीक है, और फाइनली 1909 में जो है इसको रिप्लेस किया गया, रिपील किया गया, और फाइनली 1955 में इसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया. ओके. द इंग्लिश पेनल लॉ अबॉलिश विपिंग
even earlier. In Maryland, USA, whipping was recognized as late as 1953, although it was limited only to wife beating. ठीक है, पहले के टाइम में मतलब वाइफ जो अपनी बीवी को मारता था कुछ करता था उसको इस तरीके की सजाएं दी जाती थी. ठीक है. नाउ फ्लॉगिंग विपिंग एक ही चीज़ है. तो कहीं फ्लॉगिंग लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर क्या पढ़ाने लग गए. ठीक है, अगले पैराग्राफ से. सो फ्लॉगिंग एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट इज बीइंग यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ठीक, इवन टू दिस डे ऑल्सो. ओके, कई सारी जैसे अरब कंट्रीज़ भी ऐसी है ना जहाँ पे अभी भी ये चीज़ अभी भी चल रहा है. कुछ कुछ जगहों पे कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी इन सब तरीके की कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जो हैं वो अभी भी फॉलो की जा रही हैं, अभी भी वहाँ पे चलन में है. ठीक. नाउ फ्लॉगिंग एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट इज बीइंग यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज इवन टू दिस डे. ओके, द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ फ्लॉगिंग however differed from country to country. ठीक, जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट था या जो भी इनके तरीके थे विपिंग करने के वो कंट्री टू कंट्री जो है डिफ़र करता है. ठीक है, कहीं पर कोड़े चलाए जाते हैं, कहीं पे रॉड से मारा जाता है, कहीं पे खड़ा करके मारा जाता है, कहीं पे उल्टा टांग के मारा जाता है. वो सबके अपने अपने हर कंट्री के तरीके हैं, मगर पनिशमेंट जो है देने का वो एक ही यही है कि मार के दिया जाए. ठीक. The instrument and method of whipping, flogging या whipping, however differed from country to country. Some of them used straps, ठीक, पट्टे मारते थे. ठीक है, and whip with a single lash, while other used short pieces of rubber hose. ठीक है, रबड़ से मारते थे as they left behind traces of flogging. ठीक है, जिससे रबड़ मारते थे जिससे उनके जो है निशान भी शरीर पे पड़ जाते थे. ठीक. Now in Russia, the instrument used for flogging was constructed of a number of dried and hardened thongs of rawhide. Okay, interpressed with wires having hooks in their ends, which could enter and tear the flesh of the criminal. समझिए रशिया में कितनी हार्श पनिशमेंट मिलती थी उनको, जो है लोहे की तार से और इन सब चीज़ों से बना करके उनको मारा जाता था, जिससे क्या होता था कि वो क्रिमिनल्स की जो चमड़ी होती थी उसमें भी तक फाड़ के घुस जाते थे, वो धेड़ देते थे. ठीक है. Now, flogging या whipping, please don't get confused in this. Okay, flogging as a punishment has now been discontinued in all civil societies. Okay, being barbarous and cruel in form, penological researchers have shown that whipping as a method of punishment has hardly proved effective. Okay, its futility is evinced by the fact that most of the hardened criminals who were subjected to whipping repeated their crime. ठीक, क्या होता था कि अब जो विपिंग या फ्लॉगिंग जो जो कुछ भी कहें इसको जो है अब धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है हर सिविल सोसाइटी से. ठीक है, जबकि ये कितना भी बहुत ज़्यादा ही जो है क्रूअल और एक तरीके बारबरस जो तरीका था, तो पेनोलॉजिकल रिसर्चेस कई सारी करी गई और इसको कहा गया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये रहा नहीं. ठीक है, क्योंकि जो मतलब जैसे हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे, रेसिडिविस्ट जो हमने पढ़ा कि ऑफेंडर ऐसे थे जो कई बार ये सब करते ही रहते थे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था विपिंग का. ठीक है, वो जब छूट जाते थे फिर वहीं क्राइम करते थे. सो देयर इज़ अ जनरल बिलीव दैट विपिंग में सर्व सम यूजफुल पर्पस इन केस ऑफ माइनर ऑफेंसेस. तो अगर छोटे मोटे कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया, चोरी चमारी या लूटपाट या ऐसा कुछ, उनके लिए तो विपिंग चलिए ठीक है कि उनको 4-5 कोड़े पड़े और उनका दिमाग एकदम ठीक हो गया कि चलो अगली बार से नहीं करेंगे. लेकिन जो हार्डन क्रिमिनल्स थे उनके लिए ये अभी भी काम नहीं कर रहा था. ओके, सो लाइक इन केस ऑफ माइनर ऑफेंसेस सच एज ईव टीजिंग, है ना, ईव टीजिंग आप सब लोग जानते होंगे, then drunkenness, vagrancy, shoplifting, etc. But it does not seem to have the desired effect on offenders charged with major crimes. Okay. Now, second one is mutilation. Okay. So mutilation या maiming भी इसे कहते हैं. Okay. So it is taken from a Latin word that is known as mutilus. Okay. So mutilation is cutting off or causing injury to a body part of a person. समझ गए होंगे आप, जो हम लोगों ने याद करी है उसमें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में भी पढ़ा था, आई फॉर एन आई या ऐसा कुछ, उससे रिलेटेड है. मतलब सेम वो चीज़ नहीं, आप पढ़ेंगे अभी समझ में आएगा आपको. म्यूटिलेशन और मेमिंग इज कटिंग ऑफ और कॉजिंग इंजरी टू अ बॉडी पार्ट ऑफ अ पर्सन सो दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी इज परमानेंटली डैमेज्ड. ओके, म्यूटिलेशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट को इंसान के काटा जाता है या उस पर इंजरी की जाती है इस तरीके से कि वो परमानेंटली डैमेज हो जाए. Okay, so it is also one of a kind of very harsh punishment that we used to practice in the earlier times. So क्या होता है इसमें
सो दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ परमानेंटली डैमेज्ड, डिटैच्ड और डिसफिगर्ड। या तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाती थी, या तो अलग ही काट के अलग ही हो जाती थी, या तो एकदम हुलिया बिगड़ जाता था। पर्टिकुलर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। ओके, इन टाइम्स when even judicial physical punishment was still commonly allowed to cause not only intense pain and public humiliation during the administration, but also to inflict permanent physical damage or even deliberately intended to mark the criminal for life by docking or branding. Okay, docking branding जो है ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन में पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। पब्लिक एग्जीक्यूशन का मतलब भी हम आपको बताएंगे। ओके, नाउ सो क्या होता था कि जुडिशियल फिजिकल पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, स्टिल कॉमनली अलाउड। तो उनके साथ मतलब यही होता था कि उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी किया जाता था, ठीक है, और उनके ऊपर जो है परमानेंट फिजिकल डैमेज और इन सब चीज़ों को भी कर दिया जाता था, ताकि उनको एक तरीके से सज़ा भी मिल जाए और पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी हो जाए और पब्लिक को भी एक तरीके से लेसन मिल जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। वन ऑफ द कॉमन एंटोमिकल टारगेट एरियाज not normally under permanent covering of cloth, so particular merciless in the long term were, ठीक है, समझ गए होंगे, जो मतलब, और वो भी ऐसे चीज़ों को जो डिसफिगर करते थे जो नॉर्मली कपड़े से नहीं ढके जा सकते थे, ताकि वो लोगों को दिखते रहें। ओके, now mutilation was yet another kind of corporal punishment commonly used in early times. Okay, this mode of punishment was known to have been in practice in ancient India during Hindu period. Okay, तो ये जो है जो पनिशमेंट थी ये अर्लियर टाइम में हिंदू पीरियड, मतलब जो हिंदू पीरियड था उसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती थी, ठीक है। उसे को माना जाता था कि एंशियंट टाइम में, हिंदू पीरियड के टाइम में इसको जो है सबसे ज़्यादा वाइडली इट वाज यूज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड। ओके, सो वेवर, हाँ, one or both the hands of the person who committed thief were chopped off, and if he indulged in sex crime his private part was cut off. होता क्या था, मान लीजिए अगर किसी ने मतलब चोरी चमारी करी या चोरी में वो पकड़ा गया, तो उसके एक या दो हाथ जो भी रहते थे, जैसा भी वो लोग डिसाइड करते थे, उसको काट देते थे, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए वो किसी सेक्स क्राइम में पकड़ा गया, रेप में या किसी ऐसे चीज़ में, तो उसका जो प्राइवेट पार्ट को ये लोग कट ऑफ कर देते थे, ठीक है, काट देते थे। सो ये भी बहुत हार्श पनिशमेंट रहती थी उस टाइम पर, ठीक है। सो नाउ द सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, द सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, डेनमार्क एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल, ठीक है। इन सब कंट्रीज़ में इंग्लैंड, डेनमार्क, ओके, एंड यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहाँ पर भी इसका वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। द जस्टिफिकेशन एडवांस्ड इन सपोर्ट ऑफ म्यूटिलेशन वॉज दैट इट सर्व एज एन इफेक्टिव मेजर ऑफ डेटरेंस एंड रेट्रीब्यूशन। देखिए अब इसके म्यूटिलेशन को इस जय क्या इसके ऊपर तर्क दिया जाता था कि क्यों इसको प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ये डेटरेंस और रेट्रीब्यूशन में मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें इन्वॉल्व थे। रेट्रीब्यूशन क्या था, आई फॉर एन आई, जैसा आपने पढ़ा था। रेट्रीब्यूशन क्या था कि पब्लिक के सामने बहुत ज़्यादा ही हार्श पनिशमेंट देना, ताकि एक तरीके का फियर बैठ जाए लोगों के मन में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, और उसको जो भी पर्टिकुलर पर्सन था उसको भी बहुत हार्श पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो भी कोई क्राइम ना करे। सो ये क्या था, ये रेट्रीब्यूटिव और डेटरेंस थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। सो इफेक्टिव मेजर ऑफ डेटरेंस एंड रेट्रीब्यूशन, द सिस्टम हाउएवर स्टैंड्स completely discarded in modern times because of its barbaric nature. Okay, it is believed that such punishments have an inevitable tendency to infuse cruelty among people. ओके, समझ गए होंगे अब आप ये बात। तो चलिए हम अपने एक आज थर्ड जो है हम लोग का जो सिलेबस में है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, उसको ही पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल क्या था, ठीक है, ये कैसे किस तरीके की सज़ा थी, कि मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ घुमाया जाता था उनको, ठीक है। चलिए तो ट्रांसपोर्टेशन बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा हो जाना, ठीक है, किसी को काला पानी की सज़ा दे दी गई, ये आपने बहुत फिल्मों में भी सुना होगा कि इसको काला पानी की सज़ा दे दीजिए, और वैसे भी आपने सुना होगा। सो काला पानी की सज़ा क्या होती थी, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था, पहले हम लोग ऐसे ही जनरली टर्म में समझते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है, बहुत बड़ा उपद्रवी है जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्राइम फैला रहा है, तो अगर मान लिया उसने कोई इस तरह के क्राइम के जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या कैपिटल पनिशमेंट है, कुछ भी हो, तो एक ये भी अल्टरनेटिव था कि उसको उठा करके वो लोग आइलैंड पे या ऐसी दूर जगह भेज देते थे कि जहाँ से वो कभी वापस ही ना आ पाए, ठीक है। सो काला पानी की सज़ा क्या था, ये ट्रांसपोर्टेशन चलिए समझते हैं कि पेनल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन वॉज द रिलोकेशन ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल और अदर पर्सन रिगार्डेड एज अनडिजायरेबल टू अ डिस्टेंट प्लेस ऑफ इन अ कॉलोनी फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म लेटर
स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश्ड पेनल कॉलोनीज बिकेम देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, होता क्या था कि पुराने ज़माने में ऐसे एक पेनल कॉलोनीज़ बनाई जाती थी जहाँ पे जो क्रिमिनल, किसी भी जगह का कोई क्रिमिनल होता था जो कन्विक्ट कर दिया जाता था, या कोई ऐसा था जो अनडिज़ायरेबल था सोसाइटी में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अशांति फैली रहती थी और मतलब कोई भी उसको नहीं चाहता था कि यहाँ पे रहे, उनको उठा करके एक पेनल कॉलोनीज़ इन लोगों ने बनाई थी, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता था और वहाँ से मतलब ऐसा इंश्योर किया जाता था कि वो कभी वापस वहाँ से लौट करके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सो इसे कहते थे जेट ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता था कि while the prisoners may have been released once the sentences were served, they generally did not have the resources to return home। मतलब इसमें एक ये भी दिक्कत थी कि जब उनका सज़ा का जो भी रहता था वो पूरा भी हो जाता था तो भी उनको बस वहीं से रिलीज़ कर दिया जाता था, और मगर लेकिन फिर भी वो कभी वापस लौट नहीं पाते थे। ठीक है, अब इंडिया में देखिए कैसे होता था, इंडिया में इसका क्या रेलेवेंस था। In India, in British time, Indians were used to get punished with transportation punishment, in which they were used to send to the Port Blair island of Andaman and Nicobar। देखिए आपने सुना होगा कि अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर में एक जो है जेल बनी हुई है, कभी आप लोग अगर जाइएगा भी तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, उसका नाम था सेल्यूलर जेल। ठीक है, तो वो सेल्यूलर जेल जो है मतलब वहाँ पे बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि जिसको भी काला पानी की सज़ा दी जाती थी उनको वहीं पर इला के रोका जाता था। अच्छा, अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, चूँकि आप अंडमान निकोबार जानते हैं कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर पे है और आइलैंड, चूँकि आइलैंड होने के कारण उसमें चारों तरफ बस पानी ही पानी है। तो उस टाइम पे होता क्या था कि ब्रिटिश टाइम में जो भी इंडियंस थे, जो भी जैसे मान लीजिए रिवोल्ट में थे, है ना, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ या जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कुछ भी, तो उनको काला पानी की सज़ा दे दी जा रही थी। तो उनको कर क्या दिया जा रहा था, उनको उठा करके ला करके यहाँ पोर्ट ब्लेयर में जो इन्होंने सेल्यूलर जेल का निर्माण किया इन लोगों ने, और वहाँ पे लाके उनको रख दिया जा रहा था। अब चूँकि चारों तरफ पानी होने के कारण अगर वो मान लीजिए जेल तोड़ के भाग भी लें तो भी वो जो है पानी में कहाँ से तैर के निकल जाएंगे, इतना कितना दूर तैर लेंगे, है ना, तो वो इंडिया तक तो नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए उनके लिए ये काला पानी की सज़ा बनाई गई कि जो वहाँ पर एक बार चला जाता था तो कभी लौट नहीं पाता था। ठीक है, सो in India in British time, Indians were used to get punished with transportation punishment, in which they were used to send to the Port Blair island of Andaman and Nicobar. ठीक, now Britishers in 1856, okay, Britishers planned to construct jail in the Port Blair, and finally the work of construction, sorry ये कुछ ग्रामेटिकल एरर है, सो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। ओके, so Britishers in 1856 planned to construct jail in Port Blair, and finally the work of construction was completed in 1906, okay, where Indians who were revolting against the British government for freedom were used to get transported there। okay, होता क्या था कि जो भी उस टाइम पे 1856 में ब्रिटिशर्स ने इसको, क्योंकि आपने सुना होगा 1857 में जो है वो रिवोल्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए बनी थी, लेकिन क्योंकि 1857 का रिवोल्ट तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसके पहले से ही छोटे छोटे जगहों पर रिवोल्ट चालू हो गए थे। ठीक है, वो माहौल बनने लग गया था उस टाइम पर कि अब विद्रोह करना है, अब तो आज़ादी चाहिए। सो उस टाइम पर ही ब्रिटिशर्स को आभास हो गया था कि कुछ बड़ा करने वाले हैं ये लोग, इंडियंस लोग। सो उन लोगों ने जा कर के पोर्ट ब्लेयर में प्लान कर लिया कि हम यहाँ पर अपना एक जो है सेल्यूलर जेल बनाएंगे और इनको ला कर सबको यहीं पर ही बंद कर दिया करेंगे, और जो है ताकि उस टाइम पे वहाँ से जो है हट जाए। अच्छा, इसका एक मैं आपको बताऊँ कि ये तो चलिए बहुत मास लेवल पे होता था उस टाइम पे और अब रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे कारणों में होता है, मतलब बहुत वास्ट लेवल पे नहीं होता। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि कभी अगर आपने देखा हो कि कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा भीड़ लगी है, चक्का जाम है, रोड जाम करके बैठे हुए हैं, तो आपने सुना होगा कि पुलिस ने सबको लाठी चार्ज कर दिया और फिर पुलिस की गाड़ी में सबको भर करके ले जा करके कहीं और छोड़ा है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, वो वहाँ पे अनडिज़ायरेबल थे। सो एक ये भी तरीके का जो है ट्रांसपोर्टेशन है। अब उनको काला पानी की सज़ा नहीं हुई, बट आपके समझने के लिए कि कैसे ये चीज़ उस ज़माने में होती थी कि अब उसका एक बहुत ही मतलब नैनो वर्जन समझिए हो रहा है। ठीक, नाउ सो वेयर वर वी, हाँ, तो उन लोगों ने 1956 में इसको बनाना शुरू किया, 1906 तक ये पूरी बन करके तैयार हो गई थी, और जो है वहाँ पे जो भी उस टाइम पे होता था उनको काला पानी की सज़ा ऐसे दी जाती थी। बहुत बड़े बड़े आपने सुना होगा कि फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको काला पानी की सज़ा हुई और ये सब हुआ। ठीक, नाउ पनिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिपील्ड अंडर सेक्शन, अब जो देखिए जो सेक्शन आईपीसी में जो सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स के बारे में दिया गया है, सो उसमें जो पनिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था उसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, आप सेक्शन 53 अपनी बैरक्स से पढ़ेंगे आईपीसी में, तो आपको उसमें सबसे नीचे रिपील्ड का दिया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके, सो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो ये था।
अब हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया है पब्लिक एग्जीक्यूशन। ओके, सो पब्लिक एग्जीक्यूशन जो है हमारा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ जो क्या होता था पब्लिक एग्जीक्यूशन में, फिर कुछ 2-3 सज़ाएँ और भी हैं जिसको हम लोग पढ़ लेंगे, जिनमें पब्लिकली सज़ा भी दी जाती थी। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपना कल ही जो है मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में ही अपने आगे के टॉपिक को जो है पनिशमेंट अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉ, इसको शुरू कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इन सबको ही जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में ख़त्म कर दें, ताकि फिर हम लोग अपने जो मेन टॉपिक प्रिजन सिस्टम उस पर आ जाएँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू and we'll meet in the next video. Okay, you can comment down if you are having any kind of problem or any you want to discuss anything. Okay, कुछ डिटेल में आपको डिस्कस करना है, so you can text me there. Okay, so thank you.